Good morning, students. Welcome to TSN online class. So, today we are going to start the literature portion of our class 10 CBSE board. We know in class 10 we have two books, that are First Flight, and the other book is Footprint Without Feet, which is a supplementary reader of your syllabus. So I hope you will enjoy to read the different poems and stories. We will begin the very first chapter in this video itself. Okay, so it has around 11 chapter in this First Flight book, but before we begin with the first chapter, we quickly see what we have to cover in this particular book. So we have a lot of chapter, and also we have different poems given in each and every chapter. So let's begin with the very first chapter, that is a letter to God from our book First Flight. Okay, so a letter to God. What does it mean, a letter to God? Basically, it is a story of a farmer, extreme faith in God. Okay, so the writer G.L. Fuentes has tried to depict the faith of a poor and simple farmer in God in a very impressive manner. So basically, here the writer written in a very impressive manner. Okay, so basically this chapter is going to be very interesting. So now let's start with the chapter. Okay, students, let's start with the first paragraph and the first chapter, a letter to God. So, before you read, they say faith can move mountains, but what should we put our faith in? This is the question this story delicately possesses. Okay, so Lancho is a farmer who writes a letter to God when his crops are ruined, asking for 100 pesos. So in this story, here Lancho is the protagonist. You can say main character of the story. So here the Lancho is the main character of the story. Okay. So here Lancho write a letter to God and ask for 100 pesos because his crops are totally destroyed. Here ruin means destroyed. Does Lancho letter reach God? Does God send him the money? So here now what are we given here? Here we are given two questions, so that we show our curiosity about the lesson. Okay, so the two questions are first is, does Lancho's letter reach the God? क्या Lancho का letter God तक पहुंचता है? And the second one is, डज गॉड सेंड हिम द मनी? क्या जो 100 pesos की डिमांड लैंचो ने की थी, गॉड ने वो फुलफिल करी? सो देयर आर टू क्वेश्चंस. ओके, थिंक व्हाट योर आंसर टू दीज क्वेश्चंस वुड बी एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज बिफोर यू बिगिन टू रीड इट. ओके, सो मीन्स हेयर जब क्या होता है कि लैंचो मनी मांगता है गॉड से, फिर क्या होता है, उसे उसकी जो डिमांड है वो फुलफिल होती है नहीं होती है. So now we are ready to jump into the story. Okay, students, come to the page number 3 and look at the paragraph number first. Here, the house, the only one in the entire valley, set on the crest of a low hill. From the height, one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. So in these lines, writer tried to say that जो वैली थी, मतलब जो हाउस था फार्मर का, किसका, लेंचो का जो हाउस था, वो पूरी एंटायर वैली में एक हाउस था. और कहाँ पे था? क्रेस्ट. क्रेस्ट मीन्स टॉप ऑफ अ हिल. वहाँ पे बिल्कुल टॉप पर उसका हाउस था. जैसे आप कह सकते हो ये हिल है और इसके ये टॉप पर लैंचो का घर बना था, राइट. अब फ्रॉम द हाइट वन कुड सी द रिवर. सो यहाँ से ऑन द टॉप ऑफ द हिल, राइट, यहाँ से वी कैन सी द रिवर और द राइप कॉर्न डॉटेड. सो हेयर द डॉटेड मीन्स स्कैटर्ड. सब कुछ स्कैटर्ड हुआ हुआ था, वहाँ पे फैला हुआ था. मतलब राइप कॉर्न आप देख सकते हो, ब्यूटीफुल फ्लावर्स वी कैन सी देयर. ओके, एंड
द फ्लावर्स एंड द राइप कॉर्न आर ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, मतलब वहाँ पे एक अच्छी हार्वेस्ट होती थी. द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर. सो हेयर द डाउनपोर मीन्स अ हैवी रेनफॉल, तेज बारिश जिसे हम कहते हैं, हैवी रेनफॉल. ओके, सो हेयर डाउनपोर. ओके, और एट लीस्ट अ शावर, और एट लीस्ट अ शावर मीन्स थोड़ी कम बारिश. मतलब यहाँ पे जो फार्मर है वो क्या चाहते हैं कि या तो डाउनफॉल हो जाए, मतलब हैवी रेनफॉल हो जाए, और अगर हैवी रेनफॉल नहीं हो रहा तो एटलीस्ट अ शावर हो जाए, मीन्स ईदर अ डाउनफॉल और अ शावर. थ्रू आउट द morning, Lencho, who knew his field intimately, had done nothing else but see the sky towards the north east. Intimately means पहले से हमें पता होता है, right? क्या होता है? A farmer can predict, राइट. अ फार्मर कैन प्रिडिक्ट, फार्मर को पता होता है, कोई भी फार्मर हो, यहाँ लेंचो से ही मतलब नहीं है, कोई भी फार्मर हो, दे ऑल नो कि अब क्या होने वाला है, बारिश होने वाली है नहीं होने वाली, या फील्ड क्या क्या है. तो जो नॉर्थ ईस्ट पे स्काई थे वहाँ से उनको लग रहा था कि शायद कुछ होप थी उन्हें कि रेन हो जाए. ओके, सी द सेकेंड पैराग्राफ, सेम पेज ओनली. Now we are really going to get some water, women. So here women refer to Lencho's wife. Okay, women. He said to her wife, his wife, कि अभी शायद क्या हो सकता है कि बारिश हो सकती है, मतलब वो उनको होप थी कि अभी बारिश हो जाएगी. The women who was preparing supper. So here supper means a food, a dinner. ओके, तो डिनर को यहाँ पे क्या बोलते हैं? सपर. सो जो लेंचोज वाइफ थी, बेसिकली शी वॉज प्रिपेयरिंग अ सपर फॉर हर फैमिली. रिप्लाइड येस गॉड विलिंग. सो शी सेड कि अगर भगवान चाहेंगे तो ऑफकोर्स बारिश हो जाएगी. द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड while the smaller ones were playing near the house until the women called to them, all come for dinner. So यहाँ से पता चलता है कि लेंचो के बच्चे भी थे, ठीक है. सो जो बड़े बच्चे थे, मतलब द ओल्डर बॉयज़ जो थे, बड़े लड़के जो थे उनके, दे ऑल वर वर्किंग इन द फील्ड. और जो स्मॉलर, जो छोटे बच्चे थे, वो क्या कर रहे थे? वो पास में ही खेतों में खेल रहे थे. और तब तक ये सब काम हो रहा था, तब तक उनकी मदर ने उनको किसके लिए इनवाइट कर लिया? फॉर डिनर. So it was during the meal that just as Lencho had predict a big drops of rain begin to fall. So ये सब कंटिन्यू हो रहा था, और लेंचो क्या देखता है? प्रिडिक्ट करता है. प्रिडिक्ट मतलब कहते हैं ना, सोच लेता है, भविष्यवाणी कर लेता है, पहले से ही अनुमान लगा लेता है, अज्यूम कर लेता है कि मे बी एक बिग ड्रॉप गिरेगी. इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग. सो व्हाट ही सॉ दैट टाइम कि बहुत नॉर्थ ईस्ट साइड से अ ह्यूज माउंटेन जो था, वहाँ से उसको बहुत सारा क्लाउड्स नज़र आ रहे थे, आते हुए नज़र आ रहे थे. दैट्स वाई वो प्रिडिक्ट कर रहा था कि मे बी बारिश हो जाएगी. द एयर वॉज फ्रेश एंड द स्वीट. जब मौसम अच्छा होता है, क्लाउडी होता है, तो वी ऑल नो द एयर वॉज वेरी मच फ्रेश एंड वेरी स्वीट. हम सबको बहुत अच्छी लगती है. द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑफ हिज बॉडी. तो जो लेंचो था वो घर के बाहर जाता है जस्ट टू एन्जॉय द वेदर, राइट. जैसे हम लोग जब बारिश होती है, हम जैसे ही स्टार्ट हो जाती है या मौसम कुछ चेंज होने लगता है, तो वी रश टू द आउटसाइड जस्ट बिकॉज टू एन्जॉय द वेदर. एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम, जब वो वापस आता है तो वो कहता है अपने वाइफ से और इनसे, these aren't raindrops falling from the sky, they are new coins. The big drops are 10-cent pieces and the little ones are 5. So see, this lines is in the inverted commas, then there is some conversation happening there, right? So जब वो inverted commas में, तो conversation चल रही थी. conversation लेंचो की conversation to his
वाइफ। ओके, सो वो कह रहा था कि देखो रेन ड्रॉप्स है, स्काई में नजर आ रहे हैं, रेन ड्रॉप्स हो रही है, बारिश हो रही है, तो ऐसा लग रहा है कि अब न्यू कॉइन्स। सो हेयर लेंचो मीन्स हेयर लेंचो कंपेयर द रेन ड्रॉप्स विद द मनी, राइट? सो व्हाट ही सेड, न्यू कॉइन्स, रेन ड्रॉप्स को वो क्या कहता है, न्यू कॉइन्स। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पैसेस, तो यानी बड़ी बूंदों को तो 10 सेंट पैसेस कहते हैं, एंड द लिटिल वंस आर fives. Okay, so he was very happy because मतलब बारिश से he would be able to earn some money. Okay, with a satisfied expression he regarded the field of ripe corns with its flower draped in a curtain of rain. वो देखता है एक बहुत satisfied manner में, expression में, वो बहुत happy होता है कि चलो अब कुछ हो रहा है, ठीक है, कि बारिश हो रही, बारिश होने वाली है, तो देखता है कि पूरा जो फील्ड है वो किस में कवर्ड हो चुका है, रेन में। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगिन टू ब्लो एंड अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन्स बिगिन टू फॉल। सडनली क्या होता है कि बहुत तेज़ हवाएं चलने लग जाती हैं, और जो हेलस्टोन्स हैं, हेलस्टोन्स जानते हैं आप लोग, हेलस्टोन जो ओले जिन्हें हम कहते हैं, राइट, वो हेलस्टोन। सो वो सब स्टार्ट हो जाता है। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, और यहाँ पे भी वो जो रेन ड्रॉप्स है और हेलस्टोन है, सो हेलस्टोन को किससे कंपेयर करना स्टार्ट करता है, अ न्यू सिल्वर कॉइन। द बॉय एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पल्स। सो हेयर द फ्रोजन पल्स इज हेलस्टोन। ओके, तो फ्रोजन पल्स को, जैसे नॉर्मली बच्चे एक्साइटेड होते हैं, क्यूरियस होते हैं टू कलेक्ट ऑल द हेलस्टोन, उनको उन्होंने जरा नाम दिया है उसको फ्रोजन पल्स। तो दे ऑल स्टार्टेड टू कलेक्ट द ऑल द हेलस्टोन्स। ओके, बट it is really getting bad now, exclaimed the man. अब exclaimed the man, here the man refers to Lencho. Lencho कहता है कि अब तो बहुत बुरा होने वाला है। Why he said this? Because only one ray of sunshine, where there is no hope, we still have one hope left, that is hope from रेन, राइट? किसकी होप थी इनको, रेन की, कि रेन आएगी, बारिश आएगी, तो वो कुछ मीन्स ही वुड बी एबल टू गेट सम मनी और अर्न सम मनी, राइट? तो एक होप थी, बट उसे वो होप भी अब दिख नहीं रही थी। आई होप इट पासिस क्विकली, सो शी होप दैट टाइम कि ये सब कुछ क्विकली ख़त्म हो जाए, मतलब वो हेल स्टोन और वो हैवी रेनफॉल वो सब ख़त्म हो जाए। इट डिडेंट पास क्विकली, फॉर 1 hour द हेल rain on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. The field was white as if covered with salt. But वो जो बारिश थी वो रुक नहीं रही थी, and it covers the whole area, means whole area. It covered the Rancho house, Rancho gardens, hillside areas, cornfield, along with the whole valley. And it looks like a वाइट सॉल्ट, मतलब वो इस तरीके से हेलस्टोन कवर्ड हो गया था सब एरिया पे, तो वो बिल्कुल एग्जैक्टली एक नमक की तरह, सॉल्ट की तरह नज़र आ रहा था, जैसे फैला दिया होगा। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, हेयर लेंचो कह रहे हैं कि एक भी जो ट्रीज पे जो लीफ थी वो भी अब बची नहीं थी, सब कुछ डिस्ट्रॉयड हो गया था। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, जो भी कॉर्न्स थे वो भी डिस्ट्रॉयड हो चुके थे। द फ्लावर्स were gone from the plants, means जो plants पे जो flowers थे वो भी ख़त्म हो चुके थे। Lencho's soul was filled with sadness when the storm has passed. जैसे सब कुछ ख़त्म हुआ, लेंचो किस में चला गया, ग्रीफ में, सेड हो गया था, सॉरोफुल हो गया था, बिकॉज ऑफ एवरीथिंग इज ruined. When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his son, a plague of locusts would have left more than this. मतलब यहाँ पे locust means grasshopper, plague means pandemic or disaster you can say. So यहाँ पे कह रहे हैं कि लेंचो जो कह रहे हैं कि एक है, जब ग्रास होपर भी अटैक करता है क्रॉप्स पर, तब भी इतना हार्म नहीं होता, इतना नुकसान नहीं होता, बट इस हेल स्टोन ने तो हमारे लिए कुछ भी नहीं
छोड़ा है, राइट. सो यहाँ पे द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, मीन्स इस साल उनको कुछ भी कॉर्न नहीं है, कोई खेती नहीं हुई अच्छे से. दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन. ऑब्वियस है कि वो रात उनके लिए बहुत ज़्यादा दुख भरी थी, सॉरोफुल थी. ऑल आर वर्क फॉर नथिंग, देयर इज देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, मतलब वहाँ पे और कोई था नहीं जो उनकी हेल्प कर सके. एंड वी will all go hungry this year. So last line वो कहते हैं कि इस साल हम क्या रह जाएंगे, हम सब भूखे हो जाएंगे. So here जो लेंचो है, तो इस पैराग्राफ में बेसिकली we can see the conflict between humans and nature. It's illustrated by destructions of Lencho's crops by hailstone. Okay, so we will continue this chapter in our next part. Okay, thank you.